Okay. So this relation is okay with you, okay? And then we have inserted the value for V2. How we have inserted that value for this? That we have shown that VID is equal to VO by A. And as A tends to infinity, that is for an ideal case, VID tends to be 0, or it gives me an idea that VID equals to 0, which is nothing but V1 minus V2. And that gives me V1 equal to V2. The very same thing we have inserted there. Now, what is V2 and what is V1? Here, the V1 is input. So I get V2 equals to V1 equals to V in. Just I inserted that value here, and eventually when I simplify that one, I get VO by V in, which is a closed loop gain, AF, to be equal to, what is its value? I suppose till now you might have remembered it. 1 plus RF upon R1. Okay, is it clear? Is it okay? Yes, sir. Now what is the interpretation from that? What we can understand from this relation? Various things it is revealing us if we are able to observe it properly. Very first thing is the gain is positive. Gain is positive means the output and input are in phase. Then gain depends on RF and R1. So it means we have a control over gain just by adjusting the value of R1 and RF. So now you are able to set any gain. You have a control, that control you are having with this one. Now, what are the different other parameters are there that are improved, or we can say decrease or anything? Let us see. So we'll see the different characteristics or properties. Characteristics or properties associated with this one. So what is the change or phenomena that has taken place? Let us try to see that one. Okay. So the very first thing we will see is what happens with input resistance. Now, input resistance we already know. Ri is the input resistance which is mentioned in the data book or its data sheet. Now, what is the problem? That our problem is with feedback, what is the change? With feedback, what is the change? That we need to observe. Okay. So I can say what I am concerned with feedback. With feedback. So earlier I used to nomenclature this as Ri. Now I will say RIF, means input resistance with feedback. Now there is a calculation how to calculate it, although it is not there in your course. But if you insist, I can tell you how do it is calculated. Just in short, I'll track it. That what do we do? In the non-inverting side, we have connected a input that you know it Vin. In the inverting side, what we have done? A one resistor, a grounded one, another resistor as RF, and this is R1, and this is connected to output, which is giving me VO. Okay. Now, in order to calculate its input resistance with feedback. Now, what will be input resistance? Input resistance will be the input feedback. Input resistor will be the resistance looking from the input side. I can say this is the RIF if I look towards this one. So I'll have to assume in its equivalent diagram, I'll take its Ri inside Ri, means how the Ri is changing with feedback, that I need to observe. Okay, is it clear? Hello? And I am assuming there is no internal resistance associated with this source or input. I can say this Rin is 0, or input resistance of this source is 0. Now, can you observe here? Let's say if this is my current I in,
and this is the Vin. So when I calculated AF is output voltage upon input voltage. In the similar way, RIF will be equal to the input voltage upon IN. मतलब इनपुट वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है और जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी रेशियो निकाले तो हमको इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा. इज इट क्लियर? ये अगर हम कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा. बट व्हाट इज आई इन? व्हाट इज आई इन? आई इन करंट कहां से जा रहा है बताओ तो जरा. ये आई इन करंट जा रहा है इस RI से और यहाँ पे VID है. सपोज ये V1 है, ये V2 है. अब इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मालूम है क्या, VID है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मालूम है. तो हम यहाँ करंट नहीं निकाल सकते क्या? अगर वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो करंट नहीं निकाल सकते क्या? यस वी कैन. कैसे? क्या है करंट का फॉर्मूला? I इज इक्वल टू V बाय R. तो कैन आई राइट VID बाय R इन? इसमें कोई लग रहा है क्या डिफरेंस? कैन आई राइट लाइक दिस? हेलो, कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर. ओके यस सर. बस अब मुझे ये है कि मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पुट करने वाला हूँ, दैट इज VID इज इक्वल टू VO बाई A. ये तो मालूम है ना, ये तो हम बार बार यूज करते. ठीक है. यस. बस अब ये RIF की वैल्यू हमारी इस तरीके से मिल जाएगी कि वीन की जगह है, VID की जगह आ गया VO बाई A, VO बाय A RIN नहीं RI लिखना चाहिए था. ठीक है, RI. ठीक है, यहां तक के ठीक है? यहां तक के ठीक है? हेलो. यस सर. अब ये वाला जो रेशियो है VO बाई वीन, ऑलरेडी वी नो क्या VO बाई वीन क्या होता है, AF, जो हमारा फार्मूला मिल चुका है A अपॉन 1 प्लस AB क्लोज लूप सिस्टम में. बराबर है ना? ये कोई अलग तो नहीं लिखा मैंने क्लोज लूप सिस्टम में, बस यही वैल्यू यहाँ रखने वाला हूं. ये वीन बाई VO है, ये ARI ऊपर चले जाएगा, यानी इसका क्या मिल जाएगा ARI अपॉन, या फिर यहाँ पे नीचे इसको नीचे भेज दिया तो यहाँ VO बाई वीन यहाँ आ जाएगा. ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर ये लिख सकता हूं तो अब VO बाई वीन की वैल्यू क्या होगी वो लिखना है हमको. यहाँ A अपॉन 1 प्लस AB आ जाएगा. उसी का मतलब ARI अपॉन A, और ये जो 1 प्लस AB है ये ऊपर चले जाएगा, और इसी का मतलब ये A कैंसल होके मुझे यहां मिल जाएगा RIF इक्वल्स टू RI टाइम्स 1 प्लस AB. क्या पता चलता है इससे बताओ? What is the interpretation from this one? That I got RIF equals to RI times 1 plus AB. Just let us analyze. RI is about 1 mega ohm for 741. ये हमको मालूम था पहले से, है ना? अगर हमने 741 IC यूज कर रहे तो हमको इसकी वैल्यू बहुत हाई है करके मालूम है. अब विथ फीडबैक क्या हो गया जरा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. विथ फीडबैक क्या है? दैट RIF इज RI टाइम्स 1 प्लस AB. अब ये A 1 मेगा है और B क्या रहेगा? R1 अपॉन R1 प्लस RF. तो कुछ भी एक 1K 2K की वैल्यू पकड़ो तो ये B क्वांटिटी बहुत छोटी है, A इससे ज्यादा है, 1 तो कुछ भी नहीं है. तो आई कैन आई से RI इज इंक्रीज बाई AB टाइम्स रफली, या ये RI जो है इस गेन से करीब करीब प्रोडक्ट हो गया. तो ये RIF नेचुरली बढ़ा कि कम हुआ मुझे बताओ? कितने से बढ़ा? 1 प्लस AB टाइम्स. 1 प्लस AB टाइम्स से ये इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया. Have you got this idea? Are you able to appreciate this? That with feedback, what is the advantage we are getting? We are getting the advantage that now the RIF is RI times 1 plus AB. So much reduction is there. Now second, let us see second characteristic. What is that? Output resistance with feedback. अब क्या है, सब आपको कैलकुलेशन है नहीं, डेरिवेशन है नहीं. इतना ही याद रखो, ये 1 प्लस AB टर्म से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा.
पक्का? ठीक है ना? तो जब इंप्रूव होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और आउटपुट रेजिस्टेंस घटता है तो आप अंदाज लगाओ क्या होगा, बताओ कोई तो भी। आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक अपॉन 1 प्लस AB, ये याद रखो। आउटपुट रेजिस्टेंस इंप्रूव हुआ कि नहीं? ये ROF जो है ये बहुत बहुत डिक्रीज हो गया। कितने क्वांटिटी से डिक्रीज हुआ, कितने से डिवाइड हुआ? अरे आप सोच के देखो, ये 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो वैसे RO की वैल्यू कितनी थी? रफली 75 ओम। अब 75 को जब 1 मेगा के करीब से डिवाइड करोगे तो कितना कम हो जाएगा, ऐसे 0 समथिंग, इतना लो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आर यू एबल टू अप्रिशिएट दैट कि इसके जो पैरामीटर्स है वो इंप्रूव हो गए। मैंने पहले थ्योरेटिकल लिखा था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप सिस्टम या निगेटिव फीडबैक। तुम खुद रियलाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि विथ ऑप एम्प यू आर गेटिंग मच इंप्रूव्ड क्वांटिटी। सो डू यू एग्री दैट द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इंप्रूव्ड और आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड? ओके, और भी कोई पैरामीटर है जो इंप्रूव हुए कि नहीं अपने को देखना है, बताओ कौन से हो सकते हैं? बैंडविड्थ बता सकता है? ओपन लूप का बैंडविड्थ कितना था? आपको ये नहीं मालूम था, लेकिन आपको बैंडविड्थ गेन प्रोडक्ट मालूम था कितना है? कितना था? 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यानी अगर इसका गेन 2 × 10⁵ था तो सिर्फ 5 हर्ट्ज, ये 5 हर्ट्ज और ये गेन का प्रोडक्ट, ये रफली 1 मेगा हो जाता था। तो हमारा प्रॉब्लम था, हम बोलते थे कि इन ओपन लूप वी आर नॉट एबल टू एम्पलीफाई द AC सिग्नल्स, इट कैन एम्पलीफाई द सिग्नल्स ऑफ द रेंज ऑफ 5 हर्ट्ज ओनली, and that's why it was not suitable for AC amplification. Now how these things are improved here? Now you know, अगर ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट देखा जाए, ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ। तो गेन अगर बढ़ता है तो बैंडविड्थ कम हो जाता है, गेन कम होता है तो बैंडविड्थ। तो चलो कहीं तो भी एक जगह रोक के हम लोग एक पैरामीटर को स्टडी करते हैं, तो हम यूनिटी गेन लेते हैं, तो इसको यूनिटी गेन बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब एक हमने यूनिटी गेन पर क्या होता है, तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ अगर ओपन लूप में देखूं तो मुझे ये गेन ओपन लूप का लेना पड़ेगा, और फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी या बैंडविड्थ भी ओपन लूप की लेनी पड़ेगी, बराबर है? यानी ए क्या है? ओपन लूप गेन, और F0 क्या है? ब्रेक फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं, ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑप एम्प, जो कि हमको मालूम है कि 5 हर्ट्ज है, सिर्फ 5 हर्ट्ज ओनली। तो हमको तो मालूम है कि इन स्टेबल सिस्टम यूनिटी गेन बैंडविड्थ यानी प्रोडक्ट होने की वजह से इन ओपन लूप एंड क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल। तो क्लोज लूप में यूनिटी गेन बैंडविड्थ क्या आएगा? हम क्लोज लूप में देखते हैं, क्लोज लूप में क्या आएगा? तो क्लोज लूप का गेन आएगा कितना है? AF, और इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा? उसको हम नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक, चलेगा ना? और अब हमको मालूम है कि ये जो दोनों क्वांटिटी है ये सेम रहना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही रहना चाहिए, चाहे वो ओपन लूप में रहे या क्लोज लूप में रहे। और जब दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट AF FF equal to AFO, or that gives me a quantity FF is equal to, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक इक्वल टू AFO अपॉन FF। क्या एक्सपेक्टेड है मैं इसमें? अभी क्या एक्सपेक्टेड है, मैं क्या करूंगा इसमें? इस चीज से क्या कर सकता हूँ? ये AF की वैल्यू मुझे मालूम है, वो रखना है मुझे, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। AF की वैल्यू क्या है? A अपॉन 1 प्लस AB, that gives me FF इक्वल टू, ये 1 प्लस AB ऊपर जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो FO 1 प्लस AB। और अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 5 हर्ट्ज ओनली थी, अब ये AB 1 प्लस AB से प्रोडक्ट होने के कारण करीब करीब मेगा हर्ट्ज तक चले गई। यानी जो अभी ओपन लूप का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरीके से था, किस तरीके से था? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता रहा हूं, ये करीब करीब क्वांटिटी 2 × 10⁵ इसका गेन था, तो ये रफली फ्लैट था अप टू 5 हर्ट्ज तक,
और उसके बाद ये गेन डिक्रीज, यानी ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिक्रीज होता है, ऐसे ऐसे करता है। और ये यूनिटी गेन जो है, ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये आता है 1 मेगा ओम पर, मेगा हर्ट्ज पर। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, कब? ये ओपन लूप में। और अब जब आप इसको क्लोज लूप का देखेंगे ना, तो आपको काफी हद तक के बढ़ा हुआ मिलेगा। नाउ यू आर गेटिंग ए कर्व समथिंग लाइक दिस वन, दैट लाइक दिस वन। इतना ज्यादा अभी फ्लैट हो गया है, यानी ये जो है यहाँ पे अब करीब करीब आपका बैंडविड्थ जो है वो 1 मेगा के करीब करीब चले गया, ये इतना बैंडविड्थ हो गया। सो यू आर सीइंग, यू आर विटनेसिंग the advantages of negative feedback in the non-inverting amplifier. अब एक और छोटा सा पैरामीटर बता देता हूं, टोटल आउटपुट ऑफ। अच्छा, अभी तक के जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर से पूछ सकते हैं आप कि कैसे, क्या मतलब विथ फीडबैक। हमने क्या इसके पहले देखा है? एक RIF देखा, उसके बाद ROF देखा, ठीक है, और हमने देखा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक या बैंडविड्थ जिसको बोलेंगे, क्योंकि कट ऑफ यानी वही डिसाइड कर रहे हैं। अब टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ये क्या बला है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ ऑफसेट वोल्टेज क्या है? We are intending that when there is no signal applied in the op amp, we should get output voltage equals to 0. But due to mismatch, output voltage is not 0, but there is some finite, some millivolts of output or something. Okay. So now we need to apply certain input voltage so that we will reduce this VO equals to 0. So whatever the voltage we are applying to the input is known as input offset voltage. अब इस इनपुट ऑफसेट के कारण जो आउटपुट में ऑफसेट आता है, मतलब आउटपुट में वोल्टेज आता है, उसको बोला है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इसको टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, तो इसको इंडिकेट कैसे किया है मालूम क्या? VOOT, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इन दी वर्स्ट केस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना रहेगा मुझे बताओ? इन दी वर्स्ट केस आउटपुट में वोल्टेज इन दी वर्स्ट केस क्या आएगा? अब देखो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है ना, डीसी फेनोमेना है, और ओपन लूप का गेन बहुत ज्यादा होता है। ओपन लूप का गेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर थोड़ा भी वोल्टेज दिया या मिली वोल्ट में, तो ये सैचुरेट हो जाएगा। तो ये सैचुरेट होगा, कहाँ सैचुरेट होगा? आइदर तो प्लस या माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दी ओपन लूप वर्स्ट केस वर्स्ट वैल्यू विल बी प्लस माइनस वीसेट। वर्स्ट केस सबसे वर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ये प्लस माइनस वीसेट पे जा सकता है। अब विथ फीडबैक क्या फर्क पड़ा हमको वो देखना है, ठीक है। तो अब हम यहां जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो यही जभी जैसे बताया था कि 1 प्लस AB टाइम्स से वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ फीडबैक इट विल बी कितना होगा? टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जितना भी था विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाय वही क्वांटिटी जैसे ROF में होता था 1 प्लस AB। तो ये आता है ज्यादा से ज्यादा, ये कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? तो ये प्लस माइनस वीसेट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस AB। अब देखो अगर ये वीसेट की वैल्यू, अब याद करो ऑप एम्प हम लोग कितने वोल्ट पे यूज करते हैं? मान के चलो प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो वीसेट करीब करीब रहेगा, करीब करीब, कहीं 14 रहता है, कभी 13 रहता है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं इसको 13 वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। अब जब ये प्लस 13 को 1 प्लस AB मतलब 1 मेगा से अगर डिवाइड होगा तो कितना कम हो जाएगा? ये रफली माइक्रो वोल्ट वगैरह या मिली वोल्ट में आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? दैट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज ऑल्सो रिड्यूस। सो इज इट क्लियर टू यू? ये समझ में आया क्या? हर क्वांटिटी को क्या करना जो इंप्रूव होती है, RIF इफ इट इज इंप्रूविंग इट मींस it will be RIF will be RI times 1 plus AB. If RO, it will be RO divided by 1 plus AB.
if output offset voltage is decreasing, it will be output offset voltage without feedback divided by 1 plus AB. अगर आपका कौन सा क्वांटिटी रह गया अभी, बैंडविड्थ, अगर वो इंप्रूव होता है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस AB. ऑल्दो आपको मैथमेटिकली ऐसा लग रहा है क्या है इसमें रखा, लेकिन आप सोच के देखो, एक ऑप एम्प जो 1 मेगा ओम का आरआई दे रहा था, उसको अगर और 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना इनपुट रेजिस्टेंस होता है. एक ऑप एम्प जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस 75 ओम ओनली था, if that is divided by 1 plus AB time, means how much it will be reduced. So it is giving totally win-win situation. You will get very advantageous characteristics associated with this one. So I hope it is clear. Voltage follower term कभी इसके पहले सुना है? कहाँ सुना है? सर वोल्टेज फॉलोअर तो नहीं सुने, एमीटर फॉलोअर सुने थे. हाँ बराबर. जो कॉमन कलेक्टर है वही इमीटर फॉलोअर, और उसको ही वोल्टेज फॉलोअर भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज रफली इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज. अगर ये मालूम है तो यहाँ वोल्टेज फॉलोअर का मतलब ये फॉलो करता है, आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है. ये तो आपको जो मैंने सर्किट यहाँ बनाया है, ये तो आपको अब बार बार पता चल गया. ठीक है ना? ये क्या है, ये बताओ. ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब ये भूलना मत, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अभी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अभी शुरू ही नहीं किया, मैं इसका एक एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूं. मान के चलो इफ आई रिड्यूस दिस RF टू 0, मतलब मैंने शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस 0 यानी शॉर्ट हो गया ना, और मैंने R1 रेजिस्टेंस मैंने ओपन सर्किट कर दिया. ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, मतलब R1 मैंने इनफाइनाइट कर दिया. तो ये सर्किट कैसे दिखेगा? देखो, यहां से यहां RF था जो कि मैंने शॉर्ट कर दिया ना, और यहाँ का R1 जो था ओपन कर दिया, तो यहाँ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं. और इनपुट कहाँ लगा था, कौन से टर्मिनल को लगाए, इन्वर्टिंग को लगाए कि नॉन इन्वर्टिंग को लगाए? ये मत भूलना, ये बार बार ये आने वाला है, ये पूछते हैं ये सब वोल्टेज फॉलोअर. ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग. हाँ, और इसको और एक नाम है यूनिटी गेन एम्पलीफायर, वो बाद में पता चलेगा. तो ये मैंने फीडबैक तो कोई चेंज नहीं किया, निगेटिव में ही रखा. इनपुट भी नॉन इन्वर्टिंग को दिया, तो ये एप्लीकेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है. करेक्ट है ना? अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का रिलेशन क्या था, ये याद ही हो जाना चाहिए अभी. 1 प्लस RF अपॉन R1. अब बताओ, इस तरीके से यहाँ पे AF कितना आएगा? 1 प्लस RF की वैल्यू बताओ कितनी है, क्या होगी फिर AF की वैल्यू बताओ? 1 ही होगी. बराबर है, 1 ही होंगी. यस सर. इसीलिए इसको और एक नाम है यूनिटी गेन एम्पलीफायर. क्योंकि इसका AF इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हो गया, आपके ध्यान में है क्या? VO इक्वल्स टू Vin. और इसीलिए इसको वोल्टेज फॉलोअर बोला है कि आउटपुट वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इनपुट. अरे तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट तो ये वायर से भी आ सकता है. यहाँ इनपुट 2 बार और यहाँ VO दे दिया, मिल गया, तो सेम ही रहेगा ना. फिर क्यों ये सर्किट हम यूज करें, इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, ये 1 बाई इंफिनिटी यानी 0 होता है, ये तो सबको मालूम है ना कि नहीं? एक कोई भी क्वांटिटी को वेरी लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी आती है. इस तरीके से इंटरप्रेट करने का, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू. So what we understand here, VO is equal to Vin, but it is also used as a buffer. अब बफर टर्म आता है तब हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. कॉमन इमीटर के वक्त इमीटर फॉलोअर, इट इज एक्टिंग एज अ बफर, और लोडिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज करते हैं, ऐसा वगैरह दावा करते हैं. बराबर है ना? तो यहाँ वो प्रॉपर्टीज इंप्रूव हुई क्या? लेट अस सी. हमने बताया था कि RIF इज इक्वल टू RI टाइम्स 1 प्लस AB. बराबर है? अब यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो मुझे यहाँ क्वांटिटी क्या मिल रही है? RIF इक्वल्स टू RI टाइम्स 1 प्लस A अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, यही. तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि A के कंपेरिजन में 1 इज वेरी वेरी
one is less. So RIF, I can approximately say A times RI. So what I am getting improvement, that the RI is this much time, A time RIF is, and that is what I am getting. Input impedance is very high. Similarly, I'll get ये सब quantity, ये सब advantage होने के कारण this is used as a buffer. Generally कहाँ use करते इसको? जब सेंसर का आउटपुट देना हो, जिसका लोडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसका सिग्नल बहुत वीक होता है, ये सब इसके प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाते हैं. FF ये बन जाएगा आपका A टाइम्स FO. ठीक है, ये सब एडवांटेज मिलते हैं, बाकी सब इस तरीके से. एंड दैट्स व्हाई इट इज. वैसे ये नेम मिसलीडिंग है. कैसे फेंका हुआ यूनिटी गेन में आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट ही हुआ, फिर भी एम्पलीफायर टर्म यूज करते हैं. बट क्या है कि वो उस फैमिली को बिलोंग करता है ना, एम्पलीफायर को, इसीलिए. अदरवाइज यूनिटी गेन में एम्पलीफायर बोलना थोड़ा मिसलीडिंग लगता है. सो वैसे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ये भी वैसे ही इंप्रूव हो जाता है, प्लस माइनस रीसेट अपॉन ए. इस तरीके से हमारी सभी क्वांटिटी इंप्रूव आती है करके हम लोग इसको नॉन इन्वर्टिंग बफर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोअर करके यूज करते हैं. सो इज इट क्लियर? इसका मतलब हम जितना इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट में मिलेगा ना बफर में? यस यस, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम. ये अगर आपने ये साइकिल दिया है तो ये आउटपुट वोल्टेज में एक भी चेंज नहीं आएगा, ये जैसे के वैसे आता है. ये आप प्रैक्टिकली भी करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आता है. हाँ, एग्जैक्टली सेम. हाँ, तो इसलिए तो बोला कि ये वायर में भी अगर मैंने यहाँ इनपुट दिया तो आउटपुट सेम मिलेगा, लेकिन ये और ये इसकी तुलना नहीं हो सकती. यहाँ हमको एडेड एडवांटेज क्या मिल रहा है, ये सब RIF उसको बहुत हाई है, RO बहुत छोटा है, तो ये हम इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं जहां पे लोडिंग का प्रॉब्लम है, सोर्स लोडिंग का प्रॉब्लम. मतलब जैसे सेंसर वीक रहता है ना, उसका सिग्नल मिलीवोल्ट वगैरह में आता है, अगर उसको किसी नॉर्मल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करने गए ना तो उसमें नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो इसको नॉर्मली कोई भी सेंसर का आउटपुट यूनिटी गेन एम्पलीफायर को पहले लगाते हैं. और यूनिटी गेन एम्पलीफायर का सर्किट कुछ भी नहीं है, बस आपको ये करना है, ये लिया आपने, ये निगेटिव को यहाँ शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और पॉजिटिव को जो है आपने कोई भी सिग्नल दे दिया, जो भी आप सेंसर का है या कुछ क्या है. तो ये आउटपुट सेम आएगा, इसका और इसका सेम आएगा, लेकिन इसके कारण यहाँ पे लोडिंग नहीं करेगा, ये सिग्नल यहाँ मिलेगा. फिर इसको लगे तो एम्पलीफाई कर लो, फिर इसको अब एम्पलीफाई कर लो, इस टाइप से. तो ऐसे स्टेजेस आपको दिखेंगे. अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, उसमें भी ये वाला आने वाला है, ठीक है ना. ओके, आई सपोज डाउट इज क्लियर. सो शुड वी गो फॉर नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज वोल्टेज शंट फीडबैक, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिंग एम्पलीफायर. अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इसके पहले हमने इनपुट किसको दिया था, नॉन इनवर्टिंग को. यहां हम देंगे इनवर्टिंग को. ये अब ये जो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है इसको मैंने ग्राउंड कर दिया. फीडबैक हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए इनवर्टिंग को ही फीडबैक रजिस्टर जाएगा, इसमें कोई फर्क मत करना. ये RF है जो यहाँ कनेक्ट किया है, इसको इनवर्टिंग को. अब इसके पहले क्या था, इसके पहले यहाँ जो रजिस्टर है वो यहाँ लग के ग्राउंड हो गया था. अब वो डायरेक्टली ग्राउंड ना होते हुए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इक्विवेलेंटली फिर बनाऊंगा. जो इनपुट जब ये नॉन इन्वर्टिंग को था इसके पहले, अब इन्वर्टिंग को दे दिया, यहाँ पे इनपुट दे दिया. अभी इनपुट कहाँ लगा है दिख रहे हैं आप, किसको लगा हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को. ये R1, ये RF, और ऐसा मान के चलो कि ये आउटपुट जो मैं ले रहा हूं, सपोज कई बार ये लोड रेजिस्टेंस दिखाते हैं, तो ये ग्राउंड, तो यहाँ पे ये दोनों ग्राउंड यानी कॉमन है, शॉर्ट है. तो ये जो फीडबैक बन गया, ये फीडबैक सर्किट जो बना है, इसके पहले हमने देखा था
ये वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ का और इसके सीरीज में डाल रहे थे, अब शंटेड है, मतलब करंट जा रहा है, इसलिए ये वोल्टेज शंट फीडबैक है, ये फीडबैक सर्किट है, ये वोल्टेज। अब इसी को मैं थोड़ा अपने ढंग से बना रहा हूं, क्योंकि हम लोग जैसे यूज करते हैं वो वाला। इसके पहले कैसे बताते हैं हम लोग, नॉर्मली मैं जो बनाता हूं आपने देखा होगा कि इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर दिखा देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल नीचे दिखाते हैं। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल यहां से, यह हमेशा ऐसे सर्किट रहेगा, ये आरएफ यहां आया हुआ, यहां ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। और अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता तो इसके पहले देखे होंगे हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, लेकिन ये इन्वर्टिंग होने की वजह से इसको ग्राउंड कर दिया और इनपुट दे दिया। ये दोनों सर्किट में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। देखो आप ऑब्जर्व करो और एनालाइज करते हो, मुझे ये वाला पसंद आता है और नॉर्मली हम लोग हर सर्किट में यही यूज करेंगे। देख रहे हैं आप, सेम है ये RF R1 और वहां से दिया हुआ इनपुट है कि नहीं सेम? यस सर। तो अब मैं इसको एनालाइज करने के लिए ये सब करंट, इसको नाम दे दिया I1 या IF, और जब हम थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू करते हैं ना तो इसकी भी करंट दिखाना चाहिए, अदरवाइज आइडियली ये दिखाने की जरूरत नहीं है IB। ठीक है, इस तरीके से क्यों ये सब दिखाना चाहिए, ताकि हम लोग प्रोसेस वाइज जा रहे हैं, ये बताने की इच्छा है अपने को। हम लोग ये पूरा प्रोसेस वाइज, यानी हमारा V1 यहाँ दिखाते हैं, हम V2 यहाँ दिखाते हैं और इनमें ये VID है, ये VID है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, V1 माइनस V2 इस तरह से। तो लेट अस एनालाइज दिस वन। कैसे एनालाइज करते? KCL पहले। सो KCL क्या बताता है? I1 इक्वल्स टू IB प्लस IF। ठीक है, इसको ये भी ले सकते हैं, अभी DC टाइप ही ले रहे तो I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। फिर लिखने का एज RI इज वेरी वेरी हाई, IB विल बी निग्लिजिबल। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। तो क्या मिलेगा मुझे? I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IF। I1 इक्वल्स टू IF इसके पहले भी किया था। I1 इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू R1। I1 ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। IF का ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल। ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 divided by that resistance will be the current I1। तो let us calculate that one। यहाँ पे वोल्टेज कितना है बताओ तो? यहाँ पे वोल्टेज कितना है? यहाँ पे वोल्टेज देखो, ये कितना वोल्टेज है इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? कितना वोल्टेज है? Vin वोल्टेज लगाया है ना, Vin वोल्टेज लगाया है ना R1 के अक्रॉस। यस सर। और इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है अभी हमको मालूम नहीं, इसलिए V2 लिखा हुआ है, ये पकड़ लेते हैं। ये भी ठीक है, Vin माइनस V2 अपॉन R1 और IF विल बी इक्वल्स टू V2 माइनस VO अपॉन RF। यहां तक के समझ में आया क्या? पहले देखो, देखो Vin माइनस V2 अपॉन R1, V2 माइनस VO अपॉन R1 RF। ये एक लाइन में इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वाला रिलेशन बताना है करके ये सब इतने ये कर रहा हूं। आपको एक लाइन वाला इसके बाद बताऊंगा आइडियली। ठीक है, तो यहां तक के ठीक है। हेलो, ये सब हम क्या किस लिए कर रही है एनालाइज? हमको गेन निकालना है विथ फीडबैक क्या होता है, और गेन विथ फीडबैक क्या होता है? VO अपॉन Vin। अब इस क्वांटिटी में हमको क्या क्या है? इस क्वांटिटी में हमारे पास Vin है, VO भी है, लेकिन एक अनचाहा कौन सा है? ये V2 नहीं चाहिए हमको। तो V2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और कैसे डालेंगे? याद करो किस तरीके से किया था? VID की हेल्प लिए थे हमने। क्या किए थे हमने? VID इज इक्वल टू VO अपॉन A। एज A is ideally infinite, so VID will be equals to 0। That gives me V2 equal to V1। V1 वोल्टेज क्या है बताओ देख के? 0।
इसका मतलब V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0 वोल्टेज। इसीलिए मैंने जब बोला था ना टर्म, एक वर्चुअल शॉर्ट टर्म यूज किया था, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड टर्म यूज करते, वो इसीलिए कि V2 ग्राउंड में लगा नहीं है, ये V2 पॉइंट जो है ये ग्राउंड को लगा नहीं है, लेकिन इट एक्ट एज इफ इट इज शॉर्टेड टू दिस वन एंड V1 इज ग्राउंडेड, सो V2 इज ग्राउंडेड। इसको कैसे यूज करते थोड़ा 5 मिनट बाद बताऊंगा, पहले हमको अभी की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आया अपने पास, V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू यहां रख देते, तो क्या मिलेगा मुझे, Vin अपॉन R1 इक्वल टू माइनस VO अपॉन RF। तो इसमें से VO बाई Vin किया, दैट विल बी माई AF, है ना। तो कितना आएगा बताओ तो जरा जल्दी से, माइनस RF बाय RF, माइनस RF बाय R1। अब इंटरप्रिटेशन करते हैं अपन यहां से, क्या क्या इंटरप्रिटेशन है। एक तो गेन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट एंड इनपुट आउट ऑफ फेज रहेंगे, बराबर है, निगेटिव यानी। फिर गेन डिपेंड्स ऑन R1 and RF, so easy to set up the gain or adjust the gain just with the values of R1 and RF। अगर आपको 10 का गेन चाहिए, आप RF इक्वल्स टू 10 टाइम्स R1 ले लो, है कि नहीं आसान, और कुछ भी और जगलरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि नहीं। यू कैन सेट द गेन। थोड़ा मैं आपको और तकलीफ देता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, ये वाला रिलेशन मैं यहां कर, क्या रिलेशन आया था, Vin माइनस V2 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 माइनस VO बाई RF, यहां तक आ गए थे। और हमने लिखा था कि VID इक्वल्स टू VO बाई A, ठीक है। अब एग्जैक्ट जब रिलेशन निकालना है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली एज्यूम नहीं करेंगे। VID इज इक्वल टू कितना होता है, V1 माइनस V2, बराबर है ना। जहां की V1 की वैल्यू 0 है, तो मुझे क्या मिल गया, V2 इक्वल्स टू माइनस VO बाई A। ये ठीक है क्या, देखो तो जरा वैल्यूज, V1 0 है, ग्राउंडेड है, V2 की वैल्यू हमको निकालना है, तो V2 ये 0 हो गया, 0 माइनस V2। अब V2 इक्वल्स टू माइनस VO बाई VA, ये लिख सकता हूँ क्या, और Yes, ये मैं ये इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लगिंग दिस और पुटिंग दिस, तो कितना आएगा, Vin माइनस VO बाई A, ठीक है, अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस VO बाई A माइनस VO अपॉन RF। यहां तक के ठीक है। सर लेफ्ट साइड में प्लस आएगा ना, ऑलरेडी वहां पे माइनस अरे है हाँ, तो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत ही सही। मेरी नहीं तो मेरे गलत हो जाता बाद में। ये माइनस VO बाई A भी ठीक है और माइनस VO ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे ध्यान रखा करो, अलर्ट रहा करो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Vin की टर्म अलग निकाल लेंगे, VO के टर्म अलग निकाल लेंगे, और उसमें से रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने ये कर दिया कि Vin बाय R1 इधर लिख दिया, ठीक है, और ये VO बाई A, जो VO बाई A R1 है, ये पॉजिटिव है, तो उस साइड भेज देता हूं मैं, ये माइनस VO बाई A R1 चलेगा ना, माइनस VO बाई A RF माइनस VO बाई RF। अब ये सब क्वांटिटी को मैं एक साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने तो डायरेक्ट बता देना चाहिए था, इतनी मैंने जगलरी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सबका VO कॉमन निकाल लो, माइनस भी कॉमन निकाल लेते, ठीक है। क्या बचेगा, 1 अपॉन AR1 प्लस 1 अपॉन ARF प्लस 1 अपॉन RF। यस सर, यस सर। ये क्या Yes, था, sir. ये क्या था, ये Vin बाय R1 था। अब मैं ये R1 को इधर भेज दे रहा हूं, तो R1 इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा ना। यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कर लेते हैं। अब मैं इसका ना LCM निकालूंगा, तो AR1
आर एफ आएगा, क्योंकि देखो ए आर वन टाइम्स आर एफ, ये एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आर वन, और यहाँ क्या आ जाएगा ए आर वन टाइम्स आर वन। ये आर वन और ये आर वन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वीओ बाई वी इन कर रहा हूँ, ठीक है, वीओ बाई वी इन कर रहा हूँ। तो ये सब क्वांटिटी उधर चली जाएगी निगेटिव होके, तो ऊपर क्या आ जाएगा ए आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ प्लस ए टाइम्स आर वन, ठीक है। इसको यही जो है ए एफ है, ये रिलेशन है एग्जैक्ट, और ये जो था आइडियल, ठीक है। वहां हमने आइडियली वैल्यू लिखे थे, सो इसको एग्जैक्ट रिलेशन बोलेंगे। लेकिन जब एग्जैक्ट रिलेशन में हम लोग अपना अप्रोक्सीमेशन डालते हैं, कौन सा, कि ए आर वन very very high than R1 plus RF, so we can neglect that and we can say AF equals to minus ARF upon यहाँ AR1 approximately equals to, या ये this implies AR1 plus R1 plus RF approximately equals to AR1। तो ये जब वैल्यू रखे तो हमारे पास ये ए कैंसिल हो गया और ए एफ इक्वल्स टू आ गया माइनस आर एफ। ये एग्जैक्ट रिलेशन का डेरिवेशन है, और नॉर्मली हम लोग आइडियल में कैसे करेंगे अब आपको एक लाइन में बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया क्या, इसमें कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी भी। ये कैलकुलेशन ही है, जगलरी है, खुद ही करना पड़ेगा, मैथ्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। ए आर वन है, यह ए आर एफ है और यह आर एफ है, तो एलसीएम इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा ARF, और उसके हिसाब से ऊपर की क्वांटिटी आएंगी, और वो सब करेंगे तो आपको रिलेशन ये वाला मिल जाएगा, ये जो है। और फिर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ये वाला कि R1 प्लस RF के कंपैरिजन में ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। आप एक्चुअल वैल्यू देख के भी करेंगे ना तो आपके ध्यान में आ जाएगा। आप चाहे तो एक काम करो, ए की वैल्यू मैंने तब भी बोला था 2 × 10⁵ लो, और गेन मानो अपन लोग कि हम लोग -10 सेट कर रहे हैं, तो आर एफ की वैल्यू ले लो 10K और R1 की वैल्यू ले लो 1K, और इसको एक आइडियल वैल्यू कितनी आती है और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है जरा कंपेयर करना है। ये आपको टास्क दे दिया मैंने। अब मैं आपको आइडियल कैसे फास्ट में हम लोग डिराइव करेंगे आगे वो बता रहा था मैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर दिखा दिया है, ये R1, ये RF, ये आइडियल ही है, ये आइडियल टाइप का चल रहा है। इसका फायदा क्या होता है, ये फायदा है कि ये ग्राउंडेड है, यानी एनालिसिस कितना इजी हो जाता है, जबकि इसके अंदर कईयों ट्रांजिस्टर है लेकिन हमको उसको कुछ भी देखना नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसका गेन बहुत हाई है और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए यहाँ कोई करंट ही नहीं फ्लो होने देता इनसाइड। और इसको एनालाइज करना कितना आसान है जरा देखो। यहाँ मैंने दे दिया करंट का नाम I1, यहाँ नाम दे दिया करंट का IF, और मान के चलो ये IB भी दी है, दिखा दिया। पर यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा मैं I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। IB इज निग्लिजिबली स्मॉल, तो I1 approximately equal to IF. I1 is a current flowing through this one. अब देखो, due to virtual ground, यह डायरेक्ट बोल सकता हूँ, this is V1, this is V2. Due to virtual ground concept यानी VID is equal to VO by A approximately equals to 0. क्यों? क्योंकि A is very very large और A tends to infinity. So it gives me VID equal to 0 means V1 equals to V2 equals to 0. So यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 वोल्ट लिख सकता हूँ, ये V2 is equal to 0. अब देखो कैसे, I1 क्या है, I1 equal to IF लिखा है मैंने। I1 is Vin minus 0 upon R1 into equal to 0 minus VO upon RF। बस इतना ही करना है अपने को, ये आपको डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, VO by Vin is equal to AF equals to minus RF upon R1। डायरेक्ट आपको आइडियल वैल्यू मिल जाएगी माइनस RF।
क्या किया हमने, ये पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल विच इज ऑलरेडी ग्राउंडेड। ये ग्राउंड किया हुआ है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल शॉर्ट, एंड ड्यू टू, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0। ये भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर इस टाइप की एनालिसिस, ये जो लिखा है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलो अब फास्ट में सिर्फ मैं इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज जो इंप्रूव कैसे कितनी क्या हुई वो एक बार फास्ट में यहाँ लिख देता हूँ। इसका यानी ड्रॉबैक आपके ध्यान में आ जाएगा। हम क्या क्या देखते थे इसके, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। अब यहाँ पे एनालिसिस हम करेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। ये करीब करीब आता है आपका RIF इक्वल्स टू ना, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं RIF निकालना है तो मेरे को ऐसे निकालना पड़ेगा ना कि इस यहाँ से मैं जब देख रहा हूँ ये हो जाएगा इनपुट साइड से जब देखता हूँ। अब यहाँ से जब इनपुट रेजिस्टेंस ये आ रहा है, ये इसके सीरीज में आ जाता है, किस सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। क्यों कि जब RIF निकालना है तो जब हम विन शॉर्ट करते हैं ये R1 RI के पैरेलल में आ जाता है, और जब लो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के पैरेलल में आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है। अच्छा, आपने मिलर थ्योरम पढ़े क्या, मुझे एक बार बताओ। मिलर थ्योरम ये टर्म आपको आया ही, रजिस्टर RF लगा हुआ है ये वाला, तो इसका इक्विवेलेंटली कैसे होता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट इधर आ जाता है और एक रेजिस्टेंस इसका इधर आ जाता है। एक का वैल्यू होता है RF अपॉन 1 प्लस ए, यानी जो गेन है RF डिवाइड बाय 1 प्लस ए, और एक का होता है RF अपॉन 1 प्लस 1 बाय ए। 1 बाय ए यानी ए यहाँ जाएगा, ए प्लस 1 इंटू ए RF, इस तरीके से हो जाएगा। तो वो आउटपुट साइड में आएगा, तो अपने को वो नहीं देखना है, पर इधर क्या आएगा तो RF अपॉन 1 प्लस ए। तो ये RF अपॉन 1 प्लस ए ना इसके पैरेलल में आ जाता है, किसके, R1 के। और R1 के पैरेलल में आने से मैं आपको ज्यादा इसका यानी क्या बोलना चाहिए एनालिसिस न करते हुए डायरेक्ट बताता हूँ कि ये जो RIF की क्वांटिटी है जब भी कितनी आई थी, RI टाइम्स 1 प्लस AB आई थी, है ना। यहाँ पे RIF आता है ओनली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R1। याद रखना है, यही इसका ड्रॉबैक है, RIF इक्वल्स टू R1। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट रेजिस्टेंस अब R1 पर डिपेंड करता है, और इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए ऐसा मान के चलते हैं, तो इसका मतलब R1 भी थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, बहुत कम नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक विल बी वेरी वेरी लो। और बाकी सब क्वांटिटी वैसी की वैसी है, बाकी सब इंप्रूव्ड क्वांटिटी है। मतलब क्या, ROF इज इक्वल टू RO अपॉन 1 प्लस AB। फिर थर्ड क्वांटिटी क्या थी, बैंडविड्थ विथ फीडबैक FF, दैट इज ऑल्सो FO टाइम्स 1 प्लस AB, ये भी इंप्रूव हो गई, अच्छा है। चौथी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये भी वैसी है, प्लस माइनस V से प्लस AB। So this is what I want to take you to the today's class.